Welcome to Manage Education. Welcome to this video. Now, in this video, we will discuss about preparation for the CLAT 2025 and for the legal aptitude section. So, before we begin, there is an important announcement to put forward. First of all, you're watching this video on the law entrance exam. Don't forget to subscribe. And also, if you're watching this video on the manual education, don't forget to subscribe. That also, hit that bell icon so you get the notification whenever there is a new notification or video for the exam and the preparation for the same. And if you're planning to appear CLAT 2025 and for the subsequent year, we have launched batches for you. For more details regarding the course, you can contact to the given numbers on the screen, or else if you are Mumbai based, you can directly visit to our nearest centers. We have 5 centers in Mumbai, basically in Vasai, Borivali, Andheri, Dadar and Thane. Also, you can follow us on a social media platform like Instagram, Telegram, Facebook. So what are you waiting for? Just connect with us. Let's get started. We are starting with the first thing, that is legal aptitude and legal reasoning. What exactly the legal aptitude and what exactly the legal reasoning? देखो, legal aptitude क्या होता है? Basic understanding अगर लेनी है तो legal aptitude is something like you're trying to understand the situations, right? Legal aptitude वो होता है where you are applying your knowledge. You're applying your knowledge and the other understanding skill to clear that particular question or the answer that particular question. So here, legal aptitude section in the law entrance test your legal reasoning and the legal knowledge. Legal knowledge consists of questions based on the legal fact. See, basically क्या होता है कि legal aptitude जो section होता है ना, उसमें आपको facts दिए जाते हैं, and some principle दिया होता है, कुछ principles दिए होते हैं. इन प्रिंसिपल्स को और इन फैक्ट्स को आपको कनेक्ट करना होता है. बेसिकली यू हैव टू स्टिक टू द प्रिंसिपल्स एंड आंसर द फैक्चुअल सिचुएशन. जो भी फैक्चुअल सिचुएशंस रहेगी, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन देना है. आफ्टर ऑल, यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर लॉयर, सो दैट इज इंपॉर्टेंट स्किल यू हैव, राइट? Now, current events related to the field of law आपको पता होने चाहिए. Then legal reasoning questions on the focus on the legal propositions where the set of facts are given along with the principle of the law. Like this कि अभी legal reasoning के जो questions होते हैं ना, वो क्या होता है कि basically it is about legal propositions. अब legal propositions and all these things are something like कि क्या है, कुछ नहीं होता. Basically it's a legal language. If you want to know this, it is a legal language. देखो, हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी वोकैबुलरी होती है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी वोकैबुलरी होती है, एक लैंग्वेज होती है. सो दैट इज अ लीगल लैंग्वेज. यू शुड बी अवेयर ऑफ द लीगल लैंग्वेज, यू शुड बी अवेयर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल लैंग्वेज टू सॉल्व द लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस. नाउ, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टिक द गिवन प्रिंसिपल. लाइक जो मैंने अभी बोला कि आपको जो क्वेश्चन दिया है इन द लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, स्टिक टू दैट इंफॉर्मेशन ओनली. Don't get outside of that information. Don't get into your personal morale, personal opinions, personal emotions. No, not important. Only stick to the fact and principles. That is very important in the legal aptitude part. Now here, there are some tips to enhance your CLAT legal aptitude preparation. देखो, अब प्रिपरेशन करनी तो है, बट प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से शुरू करना है, उसको एनहांस कैसे करना है, what exactly टू फोकस, क्या फोकस होना चाहिए. देखो, यहां पे इंपॉर्टेंट है व्हाट योर, आपके पास क्या स्किल्स है. कुछ लोगों के पास स्किल्स होते हैं, लाइक देखो, समवेयर पर्सन इज स्मार्ट इन रीडिंग करने में बड़ा होशियार होता है वो पर्सन, तो उसे पता होता है कि कैसे रीडिंग की जाती है. वैसे ही इन लीगल फील्ड और यू कैन से इन अ लीगल एरिया देयर इज इंपॉर्टेंट स्किल, दैट इज एनालिटिकल स्किल. आपके पास एनालिटिकल स्किल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, कंप्रीहेंड करना इन द सेंस व्हाट, आफ्टर एनालिसिस निकालने के बाद या फिर एनालाइज करने के बाद चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए. आपको एक वर्ड के अलग अलग डायमेंशंस पता होने चाहिए, समझ में आने चाहिए. सिचुएशनली आपको डायमेंशनली सोचना आना चाहिए. दैट इज द कंप्रीहेंशन स्किल, और वो स्ट्रैटेजीज आपको समझनी होगी. देन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल की, देखो, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इज अ की. इट मींस व्हाट, कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दिया है वो प्रिंसिपल को एंड दैट रूल आपको फॉलो करके फैक्चुअल सिचुएशंस को आंसर करना है. दैट इज द की टू आंसर. अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज आपको हेल्प नहीं करेगा. देन प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस. देखो, सिर्फ प्रिपरेशन इज नॉट इनफ. सिर्फ मैं ये कहता हूं कि हाँ, मैंने लीगल एप्टीट्यूड की पढ़ाई कर ली, हो गया, मैंने 2 महीने पढ़ाई कर ली, अब हो गया सब कुछ. नहीं, ऐसा नहीं होता. देयर शुड बी अ प्रैक्टिस, देयर शुड बी अ प्रैक्टिस, देयर शुड बी अ प्रैक्टिस. देखो, प्रैक्टिस इज द वन थिंग.
आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको प्रोग्रेस मिलेगा, और प्रोग्रेस होगा तभी आप एक एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। दैट इज द थिंग। सो लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन को भी क्रैक करना है, सो you have to practice and then you will get the progress, right? Then reading habit is very important. See, in every profession, in every subject, reading habit is important. So in legal section also reading habit is must. आप lawyer बनने वाले हो, future lawyer हो, आपके लिए reading is must, because you are in the field where learning is every time and every time. आपको learning करते रहनी है, तो आपको reading करनी पड़ेगी. So that is most important thing. Next, नाउ हियर आपकी जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से होगी और कहां तक आपको जाना है, कैसे स्ट्रेंथन होना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, बिगिन विद व्हाट, जैसे ही क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, इन द लीगल पार्ट आपको जब स्टडी करनी होती है, देयर इज अ क्वेश्चन कि सर स्टार्ट कहां से करूं, पता नहीं होता स्टार्ट कहां से करना है. नाउ इन दैट पॉइंट आपको जो है, सबसे पहली बात आपको थियरी से अवेयर होना होगा. थियरी से अवेयर होना इन द सेंस व्हाट, देखो सिलेबस में बहुत ज्यादा थियरी है, मतलब वास्ट थियरी है. अब हर थियरी पार्ट को आप कवर करते बैठोगे, दैट इज नॉट द सेंस. तो स्मार्टली एंड एप्टली आपको सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको कवर करना होगा. इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, उनको कवर करना होगा. सिलेबस को एनालाइज करो, यू विल गेट टू नो कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, आप उनको फॉलो करो, उनको रीड करो. देखो, एक बार रीड करके कोई भी इंसान सब कुछ याद नहीं करता, सो देयर शुड बी अ रिविजन, वो भी तो होना चाहिए. तो आप उसको रिवाइज करो, रीड करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्रैक्टिस क्वेश्चन, जब आपने रीड कर लिया, एक बार आपने रीड कर लिया, यू नो द थिंग, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आप उसको अंडरस्टैंड करोगे. अब अंडरस्टैंड कहां से करोगे, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो. एंड देन जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आती है ना, हर एक इंसान डायरेक्टली जंप्स टू द हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस. डोंट डू दिस यार. हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होती. आपको पहले बेसिक इजी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, देन कम टू द मॉडरेट वन एंड देन कम टू द हार्ड वन. देन यू विल गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्या प्रोसेस होती है. प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, सॉल्विंग द इजी क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू विल नो कि बाबा आपको हार्ड क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू प्रिफर फॉर दैट सिचुएशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, अब ये स्टार्ट कर दिया आपने. नेक्स्ट इज व्हाट, स्टिक टू द योर थिंग, स्टिक टू द प्रैक्टिस, स्टिक टू द प्लान. आपका जो प्लान है उससे स्टिक ऑफ हो जाओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टिक ऑफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर लैंग्वेज स्किल, रीडिंग हैबिट. अभी मैंने बोला रीडिंग हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीड करो तभी आपकी लैंग्वेज स्किल बढ़ेगी. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द लैंग्वेज स्किल, सिर्फ इंग्लिश नहीं होता. इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज ओनली. इंग्लिश ही लैंग्वेज नहीं है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज है. लीगल सब्जेक्ट की भी लीगल लैंग्वेज है, इससे भी समझो. सो इंग्लिश ही समझना इंपॉर्टेंट नहीं है. विद दैट हेल्प आपको उसकी हेल्प होगी, बट आपको उसके साथ लीगल की भी एक लैंग्वेज समझनी होगी. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. टर्मिनोलॉजी समझना इज इंपॉर्टेंट. उसमें भी बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, बहुत अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनको समझना पड़ेगा, उसकी रीडिंग के स्किल को समझना पड़ेगा, एनालिसिस को समझना पड़ेगा. देन नेक्स्ट, रीड द लीगल टॉपिक्स, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉज. देखो, क्लैट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखो बेसिकली यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन क्रिमिनल लॉ, राइट, एंड देन सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. सो दीज आर दी ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. यू हैव टू रीड दिस. आपको इनको रीड करना पड़ेगा. इनको रीड किए बिना आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा. तो इनको रीड करोगे, इनको बार बार रीड करोगे तभी फायदा होगा. और यहां पे मैंने स्टिक क्यों बोला है, स्टिक रहना, क्योंकि रीड करना पड़ेगा आपको. इवन कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी कुछ भी हो, आपको रीड करना पड़ेगा. यू हैव टू रीड दिस, और आपको इसको पैशनेटली करना पड़ेगा. नाउ स्ट्रेंथ, कहां से स्ट्रेंथ मिलेगी, रिविजन. स्ट्रेंथ रिविजन से आती है. एक चीज एक बार रीड करने से, 2 बार रीड करने से, सर मैंने 10 बार रीड कर लिया, नहीं हो रहा है. बॉस 10 बार रीड करके कुछ भी बाहर नहीं होता, कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी समझ नहीं आता. बाहर करना इज नॉट द थिंग, समझना इज द इंपॉर्टेंट, राइट. तो रिवीजन करो, रिवीजन को थरो रखो, इंपॉर्टेंट है. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेसफुल. कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी होगी तभी आप एक चीज को सक्सेसफुली कवर कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे. देन सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन पेपर्स. जितने भी क्वेश्चन पेपर क्लैट के अवेलेबल होते हैं, सॉल्व करो गाइस. मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन पेपर्स है, सॉल्व करो. बिकॉज यहां पर आपको पैटर्न समझ में आता है. पैटर्न 2 तरीके का पैटर्न होता है. एक होता है एग्जाम का पैटर्न बेसिकली, एंड दूसरा होता है पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न.
क्वेश्चंस किस तरीके से पैटर्न है, क्या पैटर्न क्वेश्चन का है, किस तरीके से मॉडरेट और डिफिकल्ट और इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू ऑब्जर्व एवरीथिंग. Don't just observe, note it down to your notebooks because वही आपको help करेगा to get prepared for the exams and for the legal aptitude section. So that is very important. Now moving ahead, learn strategy to answer the legal reasoning questions. Legal reasoning के questions को answer करने की strategy को सीख लो. यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ थिंग कि आप उसको जैसा जिसने बोला है वैसे ही फॉलो करो. दिस इज जस्ट अ गाइडलाइंस. यू कैन प्रिपेयर योर ओन स्ट्रैटेजी, यू कैन प्रिपेयर योर ओन स्ट्रैटेजी टू योरसेल्फ. जो आपको सूट होती है वो करो, बट दैट शुड बी इफेक्टिव. इफेक्टिव होनी चाहिए. अगर वो इफेक्टिव नहीं है देन यू हैव दिस गाइडलाइंस, इनको फॉलो करो. सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंपल. नाउ देखो, रीड द पैसेज क्वेश्चंस थरोली टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स एंड द फैक्ट. जब भी लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन हो, उसमें अगर प्रिंसिपल है, अगर उसमें फैक्ट्स दिए हैं, इंफॉर्मेशन दी है, रीड थरोली रीड करो. हर वर्ड को रीड करो, इंपॉर्टेंट है. पॉइंट टू पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है. सी इन द लीगल पार्ट आपको हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है. मे का शुड होना या फिर शाल का वुड होना, इट इज ऑल्सो अफेक्ट. ये भी अफेक्ट करता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज को, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो. डिकोडिंग द क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसको नहीं करोगे आंसर नहीं कर पाओगे. क्या आंसर करना है वही नहीं समझ में आएगा पहली बात, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन डोंट वेस्ट योर टाइम. एक सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस है, जो सीधा है, जो समझ में आ रहा है, की हाइलाइट जिसमें समझ में आते हैं, उसको बार बार रीड करके उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना. सिंपल है, एक बार रीड किया समझ में आ जाएगा. बट देन अगेन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली जो बोला, रिवीजन करो, लैंग्वेज को समझो. लैंग्वेज को समझोगे तभी स्टेटमेंट को एक बार रीड करने में समझ में आएगी, अदरवाइज स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी. सो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, ट्राई टू रिलेट द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन टू द प्रिंसिपल गिवन इन द पैसेज. सिंपल है, लॉ पढ़ रहे हो, लीगल सेक्शन कर रहे हो, लीगल के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही आपको फैक्ट के ऊपर अप्लाई करना है. एंड यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन और एडवाइस. सो सिमिलरली आपको लॉयर की तरह सोचना होगा, आपको गिवन प्रिंसिपल को फैक्ट के ऊपर अप्लाई करना होगा एंड देन आंसर इट. आपका लीगल रीजनिंग का जो थिंकिंग है, जो प्रोसेस है, वो आपको कहां से पता चलेगा? प्रिंसिपल से पता चलेगा. प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट. प्रिंसिपल को समझो, उसको फैक्ट के ऊपर अप्लाई करो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. इट इज इजी टू सॉल्व. नेक्स्ट, पे अटेंशन ऑल द प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट इन द पैसेज. यहां पर इंपॉर्टेंट है, सिंपल प्रिंसिपल हो या फिर कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल हो, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. हैव इज ओन इंपॉर्टेंस है. एक वर्ड को भी इंपॉर्टेंस है रूल्स में. तो हर प्रिंसिपल को अच्छे से ऑब्जर्व करके रीड करो, अच्छे से अप्लाई करो. डोंट मिस एनी इंफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट, ट्राई टू कीप अजम्पशंस एंड आउटसाइड द प्रिंसिपल्स एंड द फैक्ट. आपके पर्सनल ओपिनियंस नहीं चाहिए. डोंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता. इट इज नन ऑफ, मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. देखो ही मत, पर्सनल ओपिनियंस पे ध्यान मत दो. सिंपल है, जो प्रिंसिपल दिया है उससे ही स्टिक ऑफ हो जाओ. गलत भी होगा चलेगा. मर्डर में किसी को पनिशमेंट नहीं मिल रहा है तो हमें नहीं सोचना है क्यों नहीं मिल रहा है. प्रिंसिपल में नहीं दिया, नहीं देना, खत्म. इतना ही सोचो. नेक्स्ट, स्टिक टू द प्रिंसिपल एंड फैक्ट गिवन इन द पैसेज. पैसेज में प्रिंसिपल जो दिया है, स्टिक टू द प्रिंसिपल एंड द फैक्ट गिवन इन द पैसेज. जो पैसेज में बोला है स्टिक ऑफ रहो. सिंपल. देन फर्स्ट सॉल्व इजी वन एंड देन हार्ड वन. बहुत लोगों की आदत होती है, एग्जाम में अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया, भाई इसको सॉल्व किए बिना मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा. मतलब इस तरीके से सोचते हो तो कैसे होगा? एक क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, पूरा पेपर पड़ा हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे? मत करो ये चीज. अगर सिंपल वन है, पहले सिंपल वन को सॉल्व कर लो एंड देन कम टू द हार्ड वन. बिकॉज जैसे ही सिंपल वन सॉल्व करोगे ना गाइज, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो कॉन्फिडेंस आप यहां पर यूज करो. डोंट इन्वॉल्व लाइक दिस कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करूंगा. नहीं होता, ऐसे नहीं होता. एग्जाम्स ऐसी नहीं होती. अगर क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सॉल्व नहीं हो सकता, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. सिंपल, मूव टू द सिंपल वन, सॉल्व इट, देन गेट द कॉन्फिडेंस एंड देन कम टू द हार्ड वन. यू विल गेट इजी सॉल्यूशंस. ठीक है, सिंपल है, सिंपली फॉलो करो, सिंपल प्रैक्टिस करो, स्टिक टू द रिवीजन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज द की टू गेट क्रैक any exam or any section of the any question paper. So that is very important.